اگر آپ کا وطن آپ کو رہائش، خوراک، تعلیم اور باعزت زندگی نہیں دے سکتا تو پھر وطن کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جب بھی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے وجود میں کوئی ایسی چیز دریافت ہوتی ہے جو اس کے درد کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک ان پڑھ شخص اس پڑھے لکھے شخص سے بہتر ہے جو صرف اخبار پڑھتا ہے۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، سچ تو ہمیشہ آنکھیں بولتی ہیں۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کے عیب چھپانے میں رات کی طرح بنو۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ 20 اور 30 سال کی عمر میں زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام سے گزرے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غیر اخلاقی کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا ہی چھوڑ دے۔ مرد اور دریا اگر اپنی فطرت کے خلاف چلیں تو وہ اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ جہالت کے طریق سائے کو ختم کرنے کے لیے تعلیم اور شعور ضروری ہے۔ انسان حقیقت سے زیادہ وہم کا شکار ہے۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت کھو دیتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایسی چیزیں ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بغیرتی، بیوقوفی اور منافقت ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کسی کا ماضی نہیں، حال دیکھو۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ مٹایا اور نہ بھلایا جا سکتا ہے، بس تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ مانگ کر حاصل کی جانے والی عزت عزت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک احسان ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن سے آپ نے عزت کی بھیک مانگی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیشہ سوالات پوچھتے رہیں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔
किसी इंसान के लिए अहम तरीन चीज हमेशा वो होती है जिसे उसने खुद मेहनत करके हासिल किया हो। अपने मुखालफीन पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि उनकी तरफ से की गई बातें और अमल आपको ज़हीन और ताकतवर बनाते हैं। कोई इंसान खुद को किस तरह बयान करता है, इससे उसकी शख्सियत का अंदाजा आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। इस दुनिया में अपने अलावा किसी भी चीज या इंसान पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपका अपना साया भी आपको छोड़ जाता है। हर शख्स अपना दरख्त अलग अलग लगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। मतलब ये कि हर शख्स अपना फायदा सोचता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर आपको तमाम हकूक हासिल नहीं है तो जो हासिल है उनका भरपूर इस्तेमाल करें। लोगों की फजूल बातों पर गौर ना करना और उनकी बातों का रद्द अमल ना देना आपको पुरसकून और उनको बेचैन करता है। ताखीर से दिया गया जवाब गुफ्तगू के लुत्फ को कत्ल कर देता है। मेरे वालिद की अकल और मेरी माँ की जुबान ने हमेशा मेरी मदद की है। दुनिया की सर्कस नुमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफकत का है। बुराई बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत तर्क कर दें। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद महज ताल्लुक को कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। जो लोग आपकी खामोशी को नहीं समझते, वो आपकी बातों को कैसे समझ सकते हैं? लंबी जिंदगी जीने के लिए अच्छे ताल्लुकात वर्जिश से भी ज्यादा अहम हैं। हर मीठी मुस्कुराहट के पीछे एक तलख दुख होता है जिसे कोई देख और महसूस नहीं कर सकता। आपकी खुशी पर किसी का सबसे ज्यादा उदास हो जाना हासिदपन की सबसे घटिया मिसाल है। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर फकत एक गुमान साबित होता है। जब कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके ज़हन में है। हमें यह देखने और समझने के लिए तवील उम्रें जीने की जरूरत नहीं है कि इंसानों की जिंदगी किस कदर बददियानती, धोखेबाजी और मुनाफकत से भरी हुई है। अगर तुम्हें मोहब्बत की असल कीमत समझनी है तो ये 4 सच्चाइयां जान लो। नंबर 1, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर तुम सिर्फ लेने की उम्मीद रखते हो और देने को तैयार नहीं, तो ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक खुदगर्जी है। नंबर 2, मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। सच्ची मोहब्बत में आजमाइशें आती हैं, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो हकीकत में मोहब्बत करते हैं वो साथ नहीं छोड़ते। नंबर 3, हर मोहब्बत हकीकी नहीं होती। कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो वो तुम्हें कभी सच्ची मोहब्बत नहीं दे सकता। नंबर 4, मोहब्बत सब कुछ ठीक नहीं करती। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, एतमाद, इज्जत और समझौता भी जरूरी है। अगर ये सब नहीं तो मोहब्बत ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये 6 निशानियां साबित करेंगी कि जज्बात पर काबू पाने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। नंबर 1, मुश्किल हालात में घबराहट नहीं दिखाते।
वो हर परेशानी का सामना सकून और समझदारी से करते हैं। नंबर 2, लोगों की बातों पर फौरन रद्द अमल नहीं देते। वो पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं, इसीलिए कम गलतियां करते हैं। नंबर 3, गुस्से में बेकाबू नहीं होते। वो अपनी तवानाई फजूल बहसों में जाया करने की बजाय मुस्बत रास्ते निकालते हैं। नंबर 4, मायूसी में भी हौसला नहीं हारते। वो जज्बात की बजाय अकल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नंबर 5, दूसरों के अल्फाज से कम मुतासिर होते हैं। लोग जो भी कहें ये खुद पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी कदर को जानते हैं। नंबर 6, हर फैसला जज्बात से नहीं हिकमत से करते हैं। वो वक्ती जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जो बाद में नुकसान दे। यही वजह है कि वो हमेशा जीतते हैं। अगर तुम्हें हमेशा सच बोलने पर नुकसान उठाना पड़ता है तो ये 3 सच्चाइयां जान लो। नंबर 1, सच बोलने वाले हमेशा आजमाए जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, मगर सच कड़वा होता है। तुम्हारा सच बोलना लोगों को नागवार गुजर सकता है, मगर याद रखो अल्लाह सच्चों के साथ होता है। नंबर 2, हर नुकसान असल में तुम्हारे हक में होता है। वक्ती तौर पर तुम्हें लगेगा कि सच बोलने से नुकसान हो रहा है, मगर हकीकत में ये तुम्हारी इज्जत, वकार और रूहानी सुकून को महफूज रखता है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। नंबर 3, सच बोलने वाले वक्ती तौर पर तन्हा हो सकते हैं, मगर आखिर में वही जीतते हैं। लोग झूठे और मक्कारों का साथ दे सकते हैं, मगर जब वक्त आएगा तो उन्हें भी सच का सामना करना पड़ेगा। तारीख गवाह है कि सच बोलने वाले ही हमेशा इज्जत और कामयाबी पाते हैं, चाहे देर से ही क्यों ना हो। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलट कर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। गंदा पानी पौधों को बढ़ने से नहीं रोकता, लिहाजा मनफी अल्फाज को अपनी तरक्की को रोकने ना दें। हमेशा किसी काम में मसरूफ रहो, क्योंकि मसरूफ शख्स के पास गमगीन रहने का वक्त नहीं होता। किसी का जुल्म बर्दाश्त करके चुप रहना सब्र होता है, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के चुप रहना अपने ऊपर जुल्म होता है। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इंसान के निकल आए तो फिर वो बर्बादी में उरूज पर पहुंचता है। बेहतर जिंदगी चाहते हो तो इन 5 असूलों पर कभी समझौता ना करो। नंबर 1, अपनी खुदी और वकार को हमेशा कायम रखो। जब आप खुद को इज्जत देते हैं तो दूसरों को भी आपकी कदर करना पड़ती है। अपनी जात की इज्जत पर कभी समझौता मत करो, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 2, जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको खुशी, हौसला और तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। मनफी लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपकी खुशी और कामयाबी में रुकावट बन सकते हैं। नंबर 3, सेहतमंद जिस्म और ज़हन ही कामयाब जिंदगी की बुनियाद है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को नजरअंदाज मत करो और अपनी फिटनेस और खुशी के लिए वक्त निकालो।
बेहतर जिंदगी के लिए सेहत पर कभी समझौता मत करो। नंबर 4, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ख्वाबों का जिंदा रहना जरूरी है। जो भी आपको अपने ख्वाबों से दूर करने की कोशिश करे, उससे फासला रखें। अपने ख्वाबों पर समझौता मत करो, यही आपको आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5, वक्त कीमती है, इसे जाया मत करो। अपना वक्त उन कामों में लगाओ जो आपकी तरक्की, खुशी और कामयाबी का सबब बने। गैर जरूरी बातों और लोगों पर वक्त बर्बाद करने से बचो। इन असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर देखो, जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। जब तक आपके काम मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक अच्छी खबर का ऐलान ना करें, क्योंकि इब्तदाई अलानात हसद की रूह को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। हम लोगों की आधी जिंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी जिंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। अगर किसी की मदद करने पर आप बदले की उम्मीद भी रख रहे हैं, तो आप कारोबार कर रहे हैं, एहसास नहीं। टूटकर हंस देना सब्र की आखिरी सीढ़ी है। तरक्की की राह में बुराई को बर्दाश्त करना और अच्छाई की उम्मीद रखना बहुत जरूरी होता है। मुकाबला करना जंग का कानून है, लेकिन ताउन तहजीब का कानून है।